Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the Hello, learners and friends. Welcome back to my channel Gleaming Grammar. I hope you must be fit as fiddle. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे. If you are visiting my channel first time, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. And please keep on giving the same support which you are giving to our channel. Thank you so much for that. So let's jump to today's topic. So in today's video we are gonna cover the second parts of speech, that is pronoun. Now you must be thinking that in this word pronoun मैंने जो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं which is NOUN and makes a word noun उसको different part से क्यों color किया हुआ है. So the reason is the topic pronoun is completely associated and correlated to noun. Yes, आज का जो हमारा topic है pronoun, it is somewhere correlated and associated with the previous parts of speech noun. तो अगर आपने अभी तक noun topic नहीं study किया है तो आप मेरे channel से playlist से भी ये topic pick कर सकते हैं और कहीं और से भी, और from the books, from anywhere, because knowledge is everywhere. From anywhere you just study the topic noun ताकि आपको pronoun topic अच्छे से समझ आए. Now we will understand that what is pronoun. So pronoun is basically a word which is used at the place of noun. Okay, तो again मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हम noun को replace कर रहे हैं तो noun को हमें जानना ज़रूरी है, right? If we are replacing the word noun, if we are replacing the parts of the speech noun, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए that what is this noun. Okay, that's why I said in the very beginning कि आप पहले noun को clear कर लें. सो बेसिकली प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, ओके, और एट द प्लेस ऑफ नाउन. दोनों का मीनिंग सेम ही है. फॉर एन एग्जाम्पल ही, शी, इट, वी, यू, दे एंड एट्सेट्रा. देर आर सेवरल प्रोनाउंस. ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड इट बेटर, जब हमारे पास ऑलरेडी नाउन है देन वाई आर वी स्टडिंग प्रोनाउन. जब हम नाउन को यूज़ करके अपना सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं then why are we studying pronoun? So you are thinking an absolute right question. उसका आंसर हमें अभी नीचे, I'll read some sentences for you and you will get the answer by yourself. So the few lines are: Ram is the topper of my class. Ram attends all the classes. Ram follows instructions of the teachers heedfully. Don't you think so? Again and again I'm repeating the same word Ram, Ram, Ram. Okay, so to avoid the repetition of noun, okay, noun का हमें बार बार repetition ना करना पड़े, that's why we use a word which is called pronoun. Okay, for an example, हमने पहली बार राम को introduce कर दिया, first time we just took the name of the person राम. अब हम बार बार उसका name ना लेकर एक और word का use करेंगे. For an example, Ram is the topper of my class. He attends all the classes. He follows instructions of the teachers heedfully. Heedfully means carefully. So मैंने कौन सा वर्ड रिप्लेस किया है यहाँ पे? yes exactly, मैंने राम को रिप्लेस कर दिया है ही से. here also I replaced राम with he. okay, so now why only with he से ही क्यों रिप्लेस किया है उसका क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने अंडरस्टैंड किया कि वी यूज प्रोनाउंस टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन. ओके, हम बेसिकली नाउन का रिपीटेशन ना हो, दैट्स वाई वी यूज द प्रोनाउंस. नाउ if you already studied the chapter, if you have already studied the chapter, then you must be aware that there are mainly 8 types or kinds of nouns. Okay, so the 8 types of noun and kinds are here. Firstly we will simply name them and then we will understand each one of pronoun in detail. पहले हम उनको quickly read करेंगे and then we will understand each one of them. Okay, so have a glimpse of the names or of the kinds of pronouns. फर्स्ट प्रोनाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. इनका जो सीरियल नंबर है इट इज़ नॉट फिक्स, लेट मी टेल यू. ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट पे है वो फर्स्ट पर ही रहेगा. नो, द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड. ओके, और इट कैन बी स्विच्ड, हो सकता है, आपकी बुक्स पे डिपेंड करता है. देयर इज़ नो फिक्स्ड ऑर्डर. सेकेंड इज पजेसिव प्रोनाउन. थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फोर्थ वन इज emphatic pronoun. Now the task for you is, if you know what's the difference between emphatic and reflexive pronoun, yes, point number third and point number fourth में क्या difference है, if you know that,
काइंडली ड्रॉप योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. आई रियली वॉन्टेड टू नो कि आप जानते हैं ऑलरेडी बिफोर वॉचिंग माई वीडियो दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. नाउ द फिफ्थ is demonstrative pronoun. Sixth one is interrogative pronoun. Seventh pronoun is indefinite pronoun. And the last one is relative pronoun. So as I have already gave you a glimpse, मैंने आपको एक glimpse दे दी है kinds of pronouns की. अब हम एक एक pronoun को बहुत ही डिटेल में with example understand करेंगे. So keep on watching the video till end. सो एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. अब जो पर्सनल प्रोनाउन है ओके आप हम वी विल अंडरस्टैंड ईच प्रोनाउन बाय इट्स नेम. कोई भी चीज़ है उसको एसोसिएट करना है तो सबसे पहले आप उस वर्ड को ही कॉम्प्रीहेंड कर लो, अंडरस्टैंड दैट वर्ड और कॉम्प्रीहेंड दैट वर्ड. तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें जो फर्स्ट वर्ड है आपका ओके पर्सनल, उसमें एक पर्सन दिया हुआ है राइट. पर्सन, if you will take it out the initial alphabet, so it will become person. So basically personal pronoun stands for person. आप पूरी definition भी read कर सकते हैं, it is only for you. A personal pronoun is a pronoun basically which is used in the grammatical form to talk about the person. Okay, so it talks about the three persons. अब ये three persons कौन से होते हैं? Basically the first person who speaks. For an example, right now who is speaking? कौन बोल रहा है? I am speaking, so I am the first person. It is not only speaking, कभी कभी लिख भी सकता है, but basically the person who is speaking, who is writing, he is the first person. अब मैं बात किससे कर रही हूँ? To whom am I talking? मैं किसको बता रही हूँ? Of course to you, आपको बता रही हूँ, तो you are the second person. Okay, I am the first person, you are the second person. And ये जो boy है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, आपको बताऊँ that this boy, he is reading a book. Okay, he is reading an interesting book. तो ही, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ राइट. थर्ड पर्सन के बारे में आपको बता रही हूँ राइट. सो ही विल बी द थर्ड पर्सन. आई बेसिकली द पर्सन हु टॉक्स और राइट्स ओके. एंड सेकेंड पर्सन इज बेसिकली टू whom वी टॉक, जिससे हम बात करते हैं, ही इज़ द सेकेंड पर्सन. और जिसके बारे में बात करते हैं ओके दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. Now to understand all the personal pronouns in a better way, let's see this chart. Okay, हम इस chart से समझेंगे कि क्या difference है all the personal pronouns. So basically personal pronouns जो है वो three persons के लिए stand करते हैं right. First person, second person and third person. अब इन first, second, third person की भी दो categories हैं, singular and plural. Okay, as I told you recently कि who is speaking, अभी कौन बोल रहा है, तो I am speaking, so that's why I is the फर्स्ट पर्सन. अब आई सिंगुलर है क्योंकि मैं अकेली ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ राइट. तो आई जो है दैट इज सिंगुलर फर्स्ट पर्सन. अब जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरे साथ में कोई और मेंटर या कोई और टीचर बैठ जाए एंड ही ऑल्सो स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग विद मी, मेरे साथ वो भी कोलैब करके आपको एक्सप्लेन करे कोई टॉपिक, तो अगेन स्पीकर कौन हो जाएगा? मेरे साथ कोई और भी है तो वी विल बी द स्पीकर ओके. लेकिन वो प्लूरल हो जाएगा क्योंकि दैट विल बी मोर देन वन. मैं अकेली नहीं रहूँगी, मेरे साथ कोई और भी होगा, सो इट विल बी वी. तो फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन. ठीक है, आई हमारा सिंगुलर है, यू कैन सी हियर, एंड वी हमारा प्लूरल है. नाउ कम्स टू सेकेंड पर्सन. यू सेकेंड पर्सन है. ठीक है, अब यू जो है वो सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है. इसको आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो कि यू आर यूनिक. ओके, यू आर यूनिक. तो यू यूनिक है इसीलिए वो सिंगुलर में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी सेम रहता है और ऑब्जेक्ट में भी सेम ही रहता है. थर्ड पर्सन, अभी मैंने बताया कि जब हम इस थर्ड पर्सन की बात करेंगे राइट, अबाउट होम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो दैट विल बी द थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन हो जाएगा? ही, शी एंड इट. एंड इन प्लूरल कैटेगरी इट विल बी दे. आई होप आई मेड द थिंग्स क्लियर. ओके, पर्सनल प्रोनाउन के आपको सब्जेक्ट समझ आ चुके होंगे. अब पर्सनल प्रोनाउन की जो सेकेंड होते हैं दैट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है. when you will study the very important topic and imperative topic of English grammar which is voices, okay, तब आपको इन ऑब्जेक्ट्स की नीड होगी राइट. आपको पता होगा अगर आपने कभी स्टडी किया या थोड़ा बहुत गो थ्रू किया होगा कि उसमें हम पोजीशन चेंज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की. सो एट दैट टाइम यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आई. तो बेसिकली आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी. यू, मैंने आपको बताया यू इज़ वेरी यूनिक, तो आप बहुत यूनिक हैं, इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है. ओके, ही का ऑब्जेक्ट विल बी हिम, द ऑब्जेक्ट ऑफ हर विल बी शी विल बी हर, इट विल बी इट,
वी विल बी अस और दे का हो जाएगा दैम। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आप एक बार ये फ्लो चार्ट जो है वो बना लेंगे, दैन द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। Now let's move ahead and see the next pronoun which is possessive pronoun. तो अगेन पहले हम वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। डेप्थ में जाने से पहले हम वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। पजेसिव, तो आपने सुना होगा कि जनरली अगर किसी ने लोन लिया है बैंक से और द पर्सन इज अनेबल टू पे बैक द मनी और द इंस्टॉलमेंट, तो बैंक क्या करता है, पोजेशन कर लेता है, उस पर अपना होल्ड ले लेता है, राइट। तो पोजेशन का मीन्स ही क्या होता है, किसी चीज़ पे होल्ड होना, ओके। और आप मुझे बताइए कि जो चीज़ आपसे बिलोंग ही नहीं करती, क्या आप उस पर होल्ड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। जो चीज़ आपकी है विच बिलोंग्स टू यू, ओके, ओनली ऑन दोज थिंग्स यू कैन हैव होल्ड। क्लियर। तो पजेसिव प्रोनाउन भी क्या शो करते हैं, पोजेशन शो करते हैं, ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, और लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर यू। पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज टू इंडिकेट द ऑनरशिप। तो ऑनरशिप आप उसी चीज़ पे रख सकते हैं जो आपकी है, राइट, विच बिलोंग्स टू यू, ऑफ समथिंग और समवन बाय समथिंग और समवन एल्स, ठीक है। नाउ द पजेसिव प्रोनाउंस, द वर्ड्स विच कम्स अंडर पजेसिव प्रोनाउन की जो कैटेगरी में वर्ड्स आते हैं वो है माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ओके। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये बुक, ओके, ये बुक मेरी है, आई वॉन्ट टू से कि ये बुक मेरी है, तो हु हैज़ द पोजेशन, कौन है इसका ऑनर, मैं हूँ ना इसकी ऑनर, राइट, आई एम द ऑनर। सो व्हाट विल आई से, दिस बुक इज़ माइन। अब कौन सा वर्ड है जो पोजेशन शो कर रहा है, ऑफ कोर्स माइन, ओके। तो माइन इज हियर पोजेसिव प्रोनाउन। दैट कार इज हर्स, वो उसकी कार है, तो हर्स विल बी पोजेसिव प्रोनाउन। रिसेंटली I just made it clear, I explained you the personal pronoun। तो ये सारे आप क्विकली गो थ्रू कर लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ओके। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन से ही हम एसोसिएट करके पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन, ओके, ताकि आपकी पर्सनल प्रोनाउंस के जो सब्जेक्ट थे वो रिवाइज हो जाए और आप पजेसिव प्रोनाउन को उनके साथ कोरिलेट कर लें। तो फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया था, सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, ओके। अभी यहाँ पे बताया ना, दिस बुक इज माइन, तो आई का पजेसिव प्रोनाउन इज माइन। पजेसिव प्रोनाउन ऑफ वी विल बी आवर्स, यू विल बी योर्स एंड यू विल बी योर्स। मैंने आपको बताया यू यूनिक है, ओके। तो सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों ही केसेस में उसका पजेसिव प्रोनाउन योर्स ही रहेगा। ही विल बी हिज एंड शी विल बी हर्स। इट का इट्स हो जाएगा और दे का हो जाएगा देयर्स। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी आर मूविंग अहेड और अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट प्रोनाउन एंड दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पहले अगेन हम समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव जो वर्ड है उसका रूट वर्ड क्या है। तो रूट वर्ड है इसका रिफ्लेक्शन। इफ़ यू रिमेंबर इन आवर चाइल्डहुड ऑल्सो, हम मिरर से ना सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते थे ना, एक दूसरे की आइज़ डैजल करते थे। तो बेसिकली हम क्या करते थे, लाइट को थ्रो बैक करते थे, रिफ्लेक्ट करते थे, यानी कि थ्रो बैक करते थे, वापस थ्रो करते थे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो अबाउट द सेम थिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है रिफ्लेक्ट करते हैं वापस, ओके, ऑन द सब्जेक्ट। नाउ द सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है नाउन और प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वापस उसी पे रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ द वर्ड्स आर विच आर यूज्ड इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourself and themselves. Alright, now see the example. She completed her work herself, okay। अब यहाँ पे who is the subject, she, okay, उसने खुद complete किया है work and herself is reflexive pronoun। why? क्योंकि जो reflexive pronoun है, okay, herself का reflection किस पे हो रहा है, सीधा subject पे हो रहा है, she पे हो रहा है, okay। noun और pronoun कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये pronoun है। सो हर सेल्फ इज रिफ्लेक्टिंग बैक, इसका रिफ्लेक्शन वापस किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे। दैट्स वाई हर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू कैन क्विकली गो थ्रू कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। अगेन आप जनरली हम SELF सेल्फ या फिर SELVES सेल्फ, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो VES और अगर सिंगुलर है तो SELF लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं बेसिकली, ओके। लाइक आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ। नाउ CV का आवर सेल्फ। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, समटाइम्स स्टूडेंट्स डू राइट आवर सेल्फ लाइक OURSELF। मैं आपको बताऊँ ग्रामर में ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट येस क्योंकि हम योर में भी हम सेल्फ लगाते हैं F, तो बाय मिस्टेक हम आवर सेल्फ में भी F लगा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है योर सेल्फ कैन बी सिंगुलर, ओके। हमने अभी पर्सनल प्रोनाउन में स्टडी भी किया, वो सिंगुलर हो सकता है, बट
आवर सेल्फ कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, वी जो है वो प्लूरल ही है, तो उसमें हमें VES ही लगाना होगा. इफ़ यू विल वॉच माई वीडियो ऑफ नाउन नंबर विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई चैनल, तो वहाँ पे से भी आप क्लियर कर सकते हैं सिंगुलर प्लूरल के जो रूल्स हैं. ओके, उसमें भी मैंने बताया कि कैसे हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वी जो है वो प्लूरल है, इसीलिए VES आया है. ओके, नाउ as while giving the names of the pronouns, I asked you a question. I remember, I hope आपको भी remember होगा कि आपको मुझे difference बताना था reflexive और emphatic pronoun में. So let me tell you that why did I ask that question. मैंने आपसे क्यों पूछा उसको explain करने के लिए. उसका रीज़न ये है कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं. ओके, इट मीन्स इम्फेटिक प्रोनाउन जो है, जो कि हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे, उसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज़ होते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि दोनों में अगर सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं, ओके, तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. येस, तो लेट मी टेल यू कि दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स. वो आइडेंटिकल ट्विन्स है, देखने में एक जैसे लगते हैं, ओके, बट देयर वर्क इज़ डिफरेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन मैंने आपको अभी बताया कि सेम वर्ड्स यूज़ होते हैं. ओके, तो डिफरेंस क्या है वो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, इफ़ यू विल कंट्रास्ट, हम कंट्रास्ट करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ताकि हमें बेटर वे में समझ आए. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो गया है, आई होप कि वो रिफ्लेक्शन करते हैं ऑन द सब्जेक्ट. नाउ इम्फेटिक प्रोनाउन में भी हम सेम वर्ड यूज़ करते हैं. ओके, लाइक माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ. बट वाई, व्हाट्स द डिफरेंस. बेसिकली व्हेन वी वांट टू शो, व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज, जब हम किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस और वैल्यू को इंक्रीज़ करना चाहते हैं. एम्फसाइज मीन किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस दिखाना चाहते हैं. ओके, इन दैट केस वी यूज़ इम्फेटिक प्रोनाउन. सेकेंडली, आपको ध्यान क्या रखना है, वर्ड तो सेम है. ओके, बट इफ़ इट इज़ यूज्ड, अगर ये जो सेल्फ वाला वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इफ़ इट इज़ यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट हुआ है, इन दैट केस इट विल बी इम्फेटिक प्रोनाउन. जैसे कि आई हैव अरेंज्ड इट माई सेल्फ. ओके, एक नॉर्मल सेंटेंस साउंड कर रहा है, बट अगर मैं इसी को आई माई सेल्फ हैव अरेंज्ड इट, आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से एक सेंटेंस को, सेम वर्ड को थोड़ा सा प्लेस चेंज करके ऑर्डर चेंज किया है सिर्फ मैंने वर्ड्स का, और मैंने किस तरीके से उस सब्जेक्ट की और उस वर्ड की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ कर दिया है. इज़न्ट इट. सेकेंड, सिंड्रेला क्लीन द रूम हरसेल्फ. एक नॉर्मल स्टेटमेंट साउंड कर रहा है कि ठीक है, सिंड्रेला ने अपना रूम क्लीन किया, उसको करना भी चाहिए भाई. ओके, वी शुड कीप आवर रूम्स टाइडी. अब सेकंड में देखो, सिंड्रेला हरसेल्फ क्लीन द रूम. सिंड्रेला ने खुद अपना रूम साफ किया. डोंट यू थिंक सो कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट और अपने सेंटेंस को थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स एम्फसाइज कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि सिंड्रेला ने कितना बड़ा काम कर दिया. इज़न्ट इट. शी हैज़ ओपन द बॉक्स हरसेल्फ. उसने अपना बॉक्स ओपन किया खुद से. नेक्स्ट, इम्फेटिक विल बी शी हरसेल्फ. उसने खुद से इतना बड़ा काम किया. शी हरसेल्फ हैज़ ओपनड द बॉक्स. तो यू कैन रीड द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स. ओके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इम्फेटिक में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं बेसिकली सेम वर्ड्स ही यूज़ होते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन में भी, बट they are used just after the subject or just after the noun or pronoun to emphasize, to give more importance. All right, तो I hope कि I made the things very clear. आपको समझ आ गया होगा that what is the main difference between reflexive and emphatic pronoun. Okay, emphatic जो word है उसी से clear हो रहा है, right? emphasize करना किसी चीज़ को, emphatic. तो अगेन आप की वर्ड को कैच करिए, जो मेन वर्ड है आपका, जो टाइटल है. So now the next pronoun is demonstrative pronoun. So demonstrative pronoun is a word which which is used to stand or to denote for a noun. Okay, and basically 4 words are used in demonstrative pronoun. बहुत ही easily आपको समझ भी आ जाएगा. This, that, these and those, ये 4 words हैं जो कि demonstrative pronoun में use होते हैं. क्यों यूज़ होते हैं? टू डिनोट अ नाउन. ओके, किसी भी स्पेसिफिक नाउन को जब हम डिनोट करना चाहते हैं, इन दैट केस वी यूज़ दिस, दैट, दीज एंड दोज. फॉर एन एग्जाम्पल, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन. अ मिसकंसेप्शन क्या है? नाउन. ओके, मैं इसको डिनोट करना चाहती हूँ, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द वर्ड दैट. ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ अ क्लासिफाइड इन्वेस्टिगेशन. नाउ इन्वेस्टिगेशन इज़ अगेन अ नाउन, और मैं नाउन को डिनोट कर रही हूँ किस वर्ड से? दिस से.
आई डोंट थिंक सो आई नीड टू एक्सप्लेन कि इनका यूज़ कैसे होता है. दिस एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर डिनोटिंग अ सिंगुलर नाउन एंड दीज एंड दोज फॉर प्लूरल. ओके, दिस बेसिकली इफ समथिंग इज सिंगुलर एंड नियर टू अस, कोई पास है और सिंगुलर है, दैट समथिंग प्लूरल, समथिंग सिंगुलर बट फार टू अस. ओके, लाइक ये जो ब्रेन है विच इज़ जंपिंग हियर इन द कॉर्नर, ये डेफिनेटली मेरे कर्सर से इस टाइम दूर है, तो आई कैन से दैट इज़ अ ब्रेन. ओके, दैट इज़ अ ब्रेन विच इज़ जंपिंग इन द कॉर्नर, दूर है. ओके, दीज बेसिकली समथिंग विच इज़ प्लूरल एंड नियर टू अस, मेरे पास है. ओके, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर प्रेटी फ्लावर्स. एंड समथिंग विच इज़ प्लूरल एंड फार टू अस, हमसे दूर है और प्लूरल फॉर्म में है, देन वी विल यूज दोज. चेयर्स हैं, मुझसे दूर रखी हैं, तो आई विल से दोज आर चेयर्स. I hope demonstrative pronoun is clear. Now let's move ahead and see the next, which is interrogative pronoun. तो again interrogative आपने देखा होगा मूवीज़ में भी, जब जनरली पुलिस किसी को कैच कर लेती है तो वो क्या करती है, इंटेरोगेशन करती है. इंटेरोगेशन में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चन पूछती है, राइट. सो सिंपली इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आल्सो द क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड. ओके, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लाइक WH वर्ड्स होते हैं, लाइक व्हाट, विच, वेयर, हु, हाउ, व्हेन. ओके, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. ओके, लाइक whose is this bag, black bag. Now I'm using the question word, interrogative word, WH word, whose. What, क्यों use कर रही हूँ इसको? Of course to ask a question. Who helped you? Or if I say who is teaching you? Okay, let me ask you one question, just answer this question in the comment box. Which channel are you watching right now? Okay, so just give the answer in the comment box. Okay, तो which क्या होगा here, it will be interrogative pronoun. So now let's move ahead and see indefinite pronoun. अगेन जैसा कि नेम से ही साउंड कर रहा है, आप मुझे बताइए पहले, अगर मैं ये जो प्रेफिक्स है, ओके, इन जो प्रेफिक्स है इसको रिमूव कर दूँ तो क्या बचेगा, डेफिनेट, राइट. डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच इज़ श्योर. ओके, अगर मैं कहूँ कि ओके मैं आपके घर पे डेफिनेट टाइम पे आ जाऊँगी, तो डेफिनेट मीन्स एक सर्टेन टाइम की मैं बात कर रही हूँ, राइट, एक फिक्स टाइम की बात कर रही हूँ. बट इफ़ आई से इनडेफिनेट, वो यहाँ कब आएगा, कब आएगी, इट इज़ इनडेफिनेट, हमें पता ही नहीं है, दैट मीन्स श्योरिटी नहीं है. ओके, सो इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर ऑल्सो टॉक अबाउट when the things is no person or amount is not a specific नहीं है, fix नहीं है, it can be anything, we don't know basically. See the examples to understand it better. Like everybody enjoyed the concert. Now everybody, अब वो everybody कौन था, वी डोंट नो. इट कैन बी 2 persons ऑल्सो, वहाँ पे 2 person भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 100,000 भी हो सकते हैं, एनी नंबर. लेकिन नंबर जो है वो श्योर नहीं है. तो एवरीबॉडी क्या हुआ, इनडेफिनिट प्रोनाउन, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि जो पर्सनस थे वो कितने थे, राइट. इफ़ आई से आई ओपन द डोर बट देयर वॉज नो वन एट होम. अब वी डोंट नो कि नो वन में कौन था, किसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था, किसी एक फैमिली मेम्बर को, किसी 2 फैमिली मेम्बर को, वी डोंट नो. तो नो वन भी क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन. इफ़ आई से लाइक एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन मस्ट बी विजिबल टू यू, तो एवरीथिंग क्या है, सब कुछ. अब सब कुछ में सब आता है, ऑल द अल्फ़ाबेट्स, द टाइटल, ये पिक्चर, सब कुछ आता है. तो सब कुछ में यू डोंट नो कि मैम किसको डिनोट कर रही हैं पर्टिकुलरली, राइट. सो बेसिकली इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर रेफरिंग टू अनस्पेसिफिक थिंग, पर्सन और अमाउंट. नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. तो अगेन इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसमें हम अगेन सेम वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, बट द यूजेज इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट दैन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो रिलेटिव क्लॉज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बट आई नो कि रिलेटिव क्लॉज माइट भी अभी आपने नहीं पढ़ा हो, तो हम इसे ईजियर वे में समझते हैं. ठीक है, आप इतना समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, हु, ओके, हुज, विच, ओके, और हाउ की जगह दैट यूज़ करते हैं. ओके, हाउ को आप दैट से रिप्लेस कर लीजिए. दैट आई नो एक क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो आप हाउ को दैट से रिप्लेस कर लीजिए. हाउ हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, तो उसकी जगह आप दैट रिप्लेस कर लीजिए. नाउ सी, शीला हु इज़ अ टीचर ऑल्सो वर्क्स एज अ सोशल वर्कर. अब मुझे बताइए कि ये जो यहाँ पे हु यूज़ हुआ है, क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है. येस, देयर इज़ नो डाउट कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हुआ है, बट इज़ देयर एनी क्वेश्चन मार्क. क्या ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है? नो, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इसमें, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये, राइट. तो यहाँ पे जो हु वर्ड यूज़ हुआ है वो किसको डिनोट हो रहा है, किसके बारे में बता रहा है, किससे रिलेशन शो कर रहा है, शीला से, राइट. और शीला क्या है, नाउन.
राइट। तो बेसिकली हु यहाँ पे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट, क्योंकि वो किसको डिनोट कर रहा है, शीला को। इट इज़ टॉकिंग अबाउट शीला विच इज़ अ नाउन। हेयर इट कैन बी प्रोनाउन ऑल्सो, हम यहाँ पे शी भी कर सकते हैं, ओके। तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन शोज द रिलेशन, ओके, इन अ सेंटेंस विद अ नाउन और अ प्रोनाउन। आई होप आई मेड द थिंग्स क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल फॉर ये एक हाउस है, ओके, विच इज़ मेड बाय जैक, ओके, और यू कैन से विच जैक बिल्ड। दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ड। नाउ टेल मी कि ये जो विच वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है। दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ड, जो जैक ने बनाया। तो जो मीन्स क्या, क्या बनाया जैक ने, मतलब जिसे जैक ने बनाया, तो क्या बनाया जैक ने, हाउस। और हाउस क्या है, नाउन, ओके। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए, क्लियर। सो दैट्स वाई, और ये रिलेशनशिप भी शो कर रहा है, सो दैट्स वाई इट इज रिलेटिव प्रोनाउन। I hope you all have must understood all the kinds and the types of pronoun properly. If still there is any doubt, drop your question in the comment box. I'll definitely reply you back. Thank you so much for watching my video, and if you really liked, kindly click on the logo of my channel and please do subscribe my channel for watching more such video. Thank you and have a nice day.